On behalf of PSA Private Schools Association Jammu and Kashmir, we would like to condemn the Delhi and Naugam blasts, which had a lot more toll on their lives. Where from actually it is the education which is supposed to be imbibing tolerance, but unfortunately we are coming up with those modules, those issues in our system where we have to rely on the teachings of Sheikh Alam Rahmatullah Alayh. We have to go to our roots, to our culture. Firstly, I will like to relate, emphasize on one fact that the bureaucracy which is in place for education sector, they are efficient. This is our official statement. They are efficient to deal with the education scenario of Jammu and Kashmir. May it be our secretaries, principal secretaries are, may it be the directors, may it be the additional secretaries, may it be the board chairman and the secretaries. We have all faith in the system which is in place. Let us today debate about the private sector. प्राइवेट सेक्टर क्यों जरूरी है ये हम सबको पता है, मुझे इस पर बात करने की जरूरत नहीं है. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आई विल टेल यू. Government as well as the community, they have to understand one very important fact, that we are the important players in this sector. We are the knowledge partners of the government, we are the knowledge partners of the community. So if at all we see the matrix of this education sector, imagine why we don't have medical colleges in Kashmir. What's the reason? Why we are relying on the engineering colleges of Karnataka, Bangalore, and rest of the MP, and this is the fact. And why our students are in thousands and thousands in Punjab. As a society, as the government, we have to look into these things. As a community, we have to look into these things. Why our money is being sent to other places? So this is one more important factor, that we may be treated as the knowledge partners. We have been the pillars of peace for last seven decades, and especially school education. There are India has the highest number of budget schools all over the globe, and Kashmir has approximately 96% of budget schools. These budget schools are having a fee ranging of hardly 500, 400 to 1500. This is the range. So imagine how exactly they are contributing towards this educational scenario of Kashmir. We have 13 lakh students enrolled in our schools. Government has 14 lakh 50,000 students enrolled in their, and imagine we are being not treated in the way we should be. And we want next 30 years a systematic program for our schools, for our education system. NEP जो है, NEP सिर्फ बुक्स की बात नहीं कर रहा है, NEP सिर्फ NEP इवैल्यूएशंस की बात कर रहा है, NEP बुक साथ साथ में एक स्टैट्यूटरी बॉडी की बात कर रहा है, जहां से हमारे को गवर्नमेंट को भी रेगुलेट किया जाएगा, हमको भी रेगुलेट किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस किसकी है और कहां प्रॉब्लम्स आ रही है. एंड दे विल बी, दैट इज द, इनको हैंड होल्डिंग करनी है, न कि टू पुश टू वॉल. दैट इज द स्ट्रेटजी वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब ये इशू जो आ रहा है कि राइट जो एजुकेशन का है, क्वालिटी एजुकेशन का, ये हमारा मकसद है कि हम जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन रादर आई विल से, कि ये हमारा एक मकसद है. उसके लिए RTE इज द एक्ट, उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स आर वे आउट. Why don't government come into play if they have a budget of 1,14,000 crores on the education?
Why can't they benefit? Why they are restricting the ambit to the government employees only? Why don't they put it across the board that even everybody comes into even radar wala everybody comes into play? Usse kya hoga? Schools will improve. The teachers will get better salaries and best salaries, and not only them, it will improve to that extent कि सारा इकोसिस्टम इंप्रूव हो जाएगा कि हमारे स्कूल्स में कम से कम ये चीज होनी चाहिए कि अगर हम दो बुक्स हमारे पास है, वन इज बेस्ड एनसीएफ की बात कर रहे हैं या हम एनईपी की बात करते हैं, बुक्स तो सारी एनईपी फॉलो करते हैं। अब ये है कि ओवर प्राइस्ड बुक्स एक आती है जो हमारी पब्लिकेशंस होती हैं, वो क्यों ओवर प्राइस्ड है आप जानते हैं, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन्वॉल्वड इन डेवलपिंग दैट, तो वो अलग चीज है। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटीज, व्हाई डोंट वी स्विच टू द एनसीईआरटीज, जबकि हमारे पास एनसीईआरटी और बोर्ड की बुक्स में भी डिफरेंसेस हैं। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो लेस प्राइस्ड एंड बेटर क्वालिटी की बुक्स हैं। अभी मैं आपके पास, मेरे पास दो सेट्स ऑफ बुक्स हैं यहां पे। इमेजिन करेंगे कि दिस इज द सेम एनसीईआरटी विच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द एनसीईआरटी। अब हमारे बोर्ड की भी पब्लिकेशंस हैं, सेम पब्लिकेशंस। द डिफरेंस लाइज हियर कि ये डिफरेंस आती है कि द क्वालिटी ऑफ द पेपर, द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर्स, द क्वालिटी ऑफ दिस। अब इसकी प्राइसिंग का भी डिफरेंस, एक बुक हमारी इंग्लिश में आती है, हमारी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में 60 रुपीज की आती है, जबकि ये बोर्ड में 195 रुपीज की आती है। हमारा साइंस 65 रुपीज का इसमें आता है, बोर्ड में 78 रुपीज का आता है। हमारा ऐसी डिफरेंसेस हैं। अगर हम गवर्नमेंट को, आज हमने पॉलिसीज भी दी, हम गवर्नमेंट को बोलते हैं ठीक है हम एनसीईआरटी लगाएंगे, हम एनसीईआरटी डायरेक्ट लगाएंगे विदाउट कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ दैट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से हमारी प्राइसिंग बढ़ जाती है अननेसेसरी। अगर हम इस चीज को एनहांस कर देते हैं कि हम एक तरफ से सेट ऑफ बुक्स जो है एनसीईआरटी के लगाएंगे, प्लस हम उसमें रिकमेंडेड बुक्स जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की होंगी वो एडिशनल रिकमेंडेड बुक्स होंगी, दैट विल बी ऑप्शनल फॉर द पेरेंट्स, whether they want, some parents want to take it or not to take it. We want to settle this for once and for all कि ये बार बार एक बड़ा टैग लगता है माफिया। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि why schools have been, हमने देखा decline of our colleges, we have seen the decline of our medical colleges, जिनको यहीं पे आपने देखा जाहलिम वैली मेडिकल कॉलेज, आज तक हमारे को 30 साल में कोई मेडिकल कॉलेज फिर बना नहीं। हमारा आज मकसद है कि बच्चे सिर्फ, जब हम इनको विकसित भारत की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे हैं, जो बच्चा इस वक्त एलकेजी में इस वक्त बैठा है, जो इस वक्त एलकेजी में, वही मेरा कल सिटीजन बनेगा 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, who will be contributing towards the developed nation. So we have to make them financial literacy, हमें उनको देनी है, हमें AI को और मैथमेटिक्स का देना है। I will tell you one very important fact. परख ने अभी रीडिंग्स निकाली, परख ने भी स्टडी निकाली, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी टेकिंग केयर ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, जो इन्होंने इवैल्यूएशन देखी कि क्या एकेडमिक लेवल्स हैं। वी आर ऑल फॉलिंग शॉर्ट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स, हम नेशनल स्टैंडर्ड से बहुत पीछे हैं। गवर्नमेंट तो हमसे बहुत ज्यादा पीछे है, हम भी पीछे हैं। इससे बेहतर है कि आवर डिस्कशन शुड गो फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ दिस थिंग। हमें एक मुकम्मल पॉलिसी चाहिए, मुकम्मल नीति चाहिए, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस को, खास प्राइवेट पब्लिकेशंस को जो बोर्ड रिकमेंड करे, स्क्रूटनाइज करे, प्राइसिंग फिक्स करे। हमें उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। हमें एक लिस्ट चाहिए कि दीज आर द पब्लिकेशंस व्हिच वी अप्रूव। ये पब्लिकेशन 15 है, ये 50 है जिनको हमने बोर्ड ने अप्रूव किया है फॉर प्राइवेट, फॉर रिकमेंडेड सजेशंस, फॉर मोर स्टडीज। कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ वेरी टेक्निकल बुक, ये कोई आसान बुक नहीं है। इट नीड्स लॉट मोर ट्रेनिंग्स टू टीच इट। इसको पढ़ाने के लिए भी बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। हम चाहते हैं कि बोर्ड ही पब्लिशर्स को जॉट डाउन करे
कि ये वाली पब्लिशंस ओके हैं, मान लो साइंस में उनने 15 टाइटल्स ओके कर दिए, 20 टाइटल्स ओके कर दिए, 50 टाइटल, इन 50 में आप ले सकते हैं। प्राइसिंग तो आप वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है अभी जो मुझे देखने को लगा कि जैसे स्कूल वाले घर में प्राइसिंग लगा रहे हैं, तो ये ऐसे फीलिंग आ रही थी। लेट द बोर्ड नेगोशिएट विद देम द प्राइसिंग, द क्वालिटी, दिस थिंग। हमें बोर्ड ये बताए या कमेटी, गवर्नमेंट की कमेटी बने कि ये पब्लिकेशंस हैं, ये अप्रूव्ड है, वही हम अपने वेबसाइट पे डालेंगे। लेट देम पब्लिश एंड परचेज इट फ्रॉम द ओपन मार्केट। देयर इज टोटल रिकमेंडेशन ऑफ द बोस बुक्स। हम सिर्फ पिच कर रहे हैं कि बोस बुक्स जो है, हम जब एनसीईआरटी, यहां कंफ्यूजन चल रहा है कि एनसीईआरटी बुक सेम है, इट्स नॉट, देयर इज डिफरेंसेस। सो दैट इज व्हाई आई हैव गॉट दिस two books here, 2 sets of books. You can have a look, you can have a look on the quality of the both these sets. वो भी एनसी, और ये उससे 40% लेस है, ये भी आपके सामने प्राइसिंग में। So forget about it. So we are coming down on the NCERT, but इस NCERT को ऑगमेंट, सप्लीमेंट करने के लिए जो टेक्स्ट बुक्स प्राइवेट पब्लिकेशंस की हम अप्रूव कराना चाहते हैं, अलाउ कराना चाहते हैं, वो क्योंकि वो SRO 123 भी कह रहा है कि in the public interest, in the interest of the student community, in the parental choice, in the making the benchmarks, government and the boss can make a committee, can recommend some books. It is there in the SRO 123. We understand 9th ke baad 9th, 10th, 11th, 12th, the NCERTs are so well designed. We agree, we have this understanding of these facts, but one very important, suggested readings, extra material is everywhere part of the game. So we cannot deny that. So we are asking, okay, जो ही हम suggested readings करते हैं ना, आप बोलते हैं देखो इनको ये कमीशन होगा, इनको अब ये होगा. We want this to end. We are asking the government to give it.